Good morning, class. In today class, we are going to start with the topic Kingdom Protista. Before we start, first we revise the whole content of previous class. In previous class, we already dealt with the two kingdom system, that was given by Linnaeus, in which all organism are divided into plant kingdom and animalia kingdom according to their characteristics. After Linnaeus, five kingdom system was given by R.H. Whitaker in 1969. These are Monera, Protista, Fungi and Plantae. In five kingdom system, the main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of reproduction and mode of nutrition and phylogenetic relationship. After R.H. Whitaker, there is a three domain system are also proposed that divides the kingdom into three domain. First is Monera and second is Plantae and third is Animalia. But five kingdom system are more adequate. For example, we are going to start with the Kingdom Monera. In Kingdom Monera, all bacteria are grouped into the Kingdom Monera. There are four types of bacteria in Kingdom Monera are present. That is rod-shaped Bacillus, comma-shaped Vibrio, spherical-shaped Cocci, and spiral-shaped Spirillum. Archaebacteria. They live in most harsh condition. For example, methanogens, eubacteria. They are also known as true bacteria. For example, cyanobacteria. They are synthetic bacteria, unicellular, colonial. They live in fresh water as well as marine water both. Some nostoc and Anabaena are also considered as photosynthetic bacteria. Some chemosynthetic autotrophic bacteria are also considered in Monera kingdom. Now, some symbiotic association are also seen. They are known as rhizobium. They fix atmospheric nitrogen into the root, or from root to it deposited into the soil. Now, mycoplasma. It is the smallest known living cells. It completely lack cell. Now, in today class, we are going to start with Kingdom Protista. What is Kingdom Protista? All single-celled eukaryotes are grouped into the Kingdom Protista. But the boundaries of this kingdom are not well defined, because in this kingdom some photosynthetic protists are also grouped, and some heterotrophic protista or protozoans are also grouped. For example, cryophytes. They are diatoms. They include diatoms. They are photosynthetic algae, or they are microscopic, float passively in water current. They are photosynthetic, means they are considered as autotrophs also. Now, diatoms. What are diatoms?
Diatoms actually a soap box like structure have a soap box like structure. The cell wall form two thin overlapping which fit together as in a soap box. The wall are embedded within and thus the walls are indestructible. जैसे कि thus diatoms have felt behind large amount of cell wall deposits in their habitat. कई सालों तक जब डायटम्स का एक्यूमुलेशन होता है, डेड एटम्स का एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो बिलियन ईयर बाद ये डायटोमियस अर्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्रीटी पॉलिशिंग और ऑयल और सिरप में ये चेंज हो जाते हैं डायटम बिलियन आफ्टर द बिलियन ईयर्स. Diatoms are the chief producer of the ocean because they are photosynthetic too. Dinoflagellates. What are dinoflagellates? They are marine and photosynthetic organism, blue or red depending on the main pigment present in their cells. They are also autotrophic due to the presence of photosynthetic pigment. They synthesize their own food. They have flagella. Most of them has two flagella. One lie longitudinal and other lie transversely. As you can see in figure, there all the individuals Serratium and Gymnodium both contain flagella horizontally. One flagellum are present horizontally and second horizontally or transversely, and second flagella are present as a longitudinal type in a furrow between the walls. As you can see in this image, Serratium, in the furrow between the walls both are present. Here flagella is present in between the furrow of the wall. For example, in Gonolax dinoflagellate, in which one flagellum transversely present and one flagellum longitudinally present. It goes rapid multiplication that they make the sea appear red. डायनोफ्लैजलेट की वजह से जो सी का कलर होता है, और क्योंकि इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होती है, मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन होता है जिसके थ्रू सी का कलर रेड हो जाता है. तो जिस सी में डायनोफ्लैजलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे सी का कलर रेड हो जाता है. ये टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू जो फिशेस के लिए हार्मफुल होता है, फिशेस के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है. नाउ यूग्लिनॉइड्स. व्हाट आर यूग्लिनॉइड्स? दे हैव टू फ्लैजलम. बोथ आर प्रेजेंट longitudinally. They also consider as photosynthetic. In the presence of sunlight they produce food, but in the absence of sunlight they behave like a heterotrophs by predating on other smaller organism. इसका most common example is Euglena, in which only one nucleus is present. They has chloroplast in their cell. In the presence of sunlight,
photosynthesis take place in the chloroplast of euglenoid, but in the absence of sunlight they behaves like heterotrophs and get their food by smaller organism, by feeding on smaller organism. Now slime molds. What are slime molds? Slime molds are actually saprophytes which are look like fungi, but they are not fungi. They are belong to the Protista kingdom. They are protistans. They engulf organic material. They form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over surface of dead material. As you can see in this image, the yellow uh, color shows slime molds which grow on dead material or dead wood, जो जो कि एक्चुअली बारिश में भीगने से जो लकड़ियाँ सड़ जाती हैं या जो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं, मोस्टली ये लकड़ियों पर ही जर्मिनेट होता है या अपने ग्रो करता है। ये इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है रेनिंग सीज़न, जिसमें कि मॉइस्ट जो इन्हें वुड चाहिए रहता है वो मॉइस्ट चाहिए रहता है और ये ईज़िली उस पर सेवरल फीट तक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। Now we move to the protozoans. What are protozoans? They are heterotrophs, means they get their food by other organism and live as predators or parasites. There are four major groups of protozoan. For example, amoeboid protozoan, flagellated protozoans, ciliated protozoans and sporozoans. Because in amoeboidal protozoans they have pseudopodia as a locomotory organ or as a respiratory organ as well as excretory organ. They live in fresh water, marine water or moist soil. They move by pseudopodia and engulf food or excrete or respirate by pseudopodia through plasma lemma. For example, in amoeba, they can respire through plasma lemma, can excrete through plasma lemma or feed through plasma lemma. Some of them, such as ant amoeba, are parasites in the intestine of human. These are circular in shape, have contractile vacuole but filled with blood and tissues. They have nucleus and nucleoplast. They have chloroplast and reproduce by multiple fission. Ant amoeba. Now, flagellate protozoan. What are they? The member of this group are either free living और parasitic भी हो सकते हैं. For example, अगर हम यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना फ्लैजेलेटेड भी होता है, फ्री लिविंग भी होता है, लेकिन एज द सेम टाइम वो एज अ पैरासाइट भी बिहेव करता है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे कांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. They feed on other living organism. So it behaves autotrophs
as well as predator also. Trypanosoma. Some example are trypanosoma. They are also flagellate. They cause sleeping sickness in humans, but it is not common in India. They cause African sleeping sickness. Now we move to the third type of protozoan, that is ciliated protozoan. What is ciliated protozoan? They are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia all around their body. The outside of the cell surface, the coordinated movement of row of cilia cause the water laden with food to be steered into the gullet. For example, यहाँ these oral groove behave like a mouth. ओरल ग्रूव में जब सीलिया मूव करता है तो ओरल ग्रूव में वाटर करंट का फ्लो होने लगता है. वाटर करंट के थ्रू जितने भी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ओरल ग्रूव में जाते हैं. ओरल ग्रूव में जाने के बाद यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है. एंड पॉइंट पे साइटोफेरिंक्स के पास यहाँ पे साइटोफेरिंक्स होता है. साइटोफेरिंक्स के पास वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसमें फूड स्टोर रहते हैं. फूड के डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इससे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. नाउ व्हाट आर स्पोरोजोन्स? Fourth type of protozoa are sporozoans. In these type, there is no any locomotory organ are present. There is no pseudopodia, cilia and flagella are present. So their structure like a spore. इसका स्ट्रक्चर स्पोर की तरह होता है जिसकी वजह से इसे स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन कहा गया. इसमें न्यूक्लियस, ये जनरली पैरासाइट होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया की लाइफ साइकिल में फर्स्ट होस्ट इसका ह्यूमन रहता है और सेकंड होस्ट मॉस्किटो रहता है. ये मॉस्किटो में तो जनरली कोई अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन इन ह्यूमन सीवियर डिजीज़ हो जाती है, जिससे सीवियर डिजीज़ हो इन ह्यूमन सीवियर प्रॉब्लम प्लाज्मोडियम क्रिएट करता है. अब हम लाइफ साइकिल को समझेंगे. क्या मलेरिया की लाइफ साइकिल में एक्चुअली होता क्या है? तो जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो वो ह्यूमन के ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए वहाँ पे अपना सलाइवा छोड़ देता है, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही मॉस्किटो के सलाइवा में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं. ह्यूमन के ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये लीवर सेल को अफेक्ट करते हैं. यहाँ पे ये लीवर सेल में जाते हैं. लीवर सेल में तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बाद ये जब इनकी मैच्योरिटी हो जाती है, स्पोरोजोइट्स की मैच्योरिटी हो जाती है और ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब
लीवर सेल बर्स्ट कर जाती हैं और यहाँ से क्रिप्टोमिरोजॉइट्स रिलीज होके आरबीसी में चले जाते हैं। यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है क्रिप्टोमिरोजॉइट्स का इन सिग्नेट रिंग फॉर्म में, जिसमें पूरी आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, वो रिंग की तरह एक बन जाता है। तो इस स्टेज को सिग्नेट रिंग फॉर्म कहा जाता है। फिर यहाँ पर फर्दर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है और क्रिप्टोमिरोजॉइट्स अपने नंबर को तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं और इस स्टेज को सुफने डॉट कहा जाता है। सुफने डॉट, सुफने डॉट कहा जाता है इस स्टेज को। जब मल्टीप्लिकेशन के बाद जब पूरी आरबीसी फिल हो जाती है क्रिप्टोमिरोजॉइट से, फिर ये रिलीज़ ब्लड में रिलीज़ होते हैं आरबीसी को बर्स्ट करने के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी आरबीसी अफेक्टेड हो जाती हैं और आरबीसी डाई करने लग जाती हैं। आरबीसी डाई करके स्प्लीन में स्टोर होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इन मलेरिया स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। तो आरबीसी तो डाई करती ही हैं, साथ में स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब स्पोरो क्रिप्टोमिरोजॉइट्स जब रिलीज़ होते हैं ब्लड में इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट्स, तो इसको फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, जहाँ पे पेशेंट को पहली बार सर्दी लगती है और तेज़ बुखार आता है, हाई फीवर हो जाता है। तो ये फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है इसको, क्योंकि पहली बार जब रिलीज़ होते हैं क्रिप्टोमिरोजॉइट्स ब्लड में मल्टीप्लिकेशन के बाद गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेज को फर्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। फिर जब गैमेटोसाइट्स ब्लड में रिलीज़ होने के बाद एज सच पड़े रहते हैं, जब इस पेशेंट को दूसरा मॉस्किटो आके काटता है या बाइट करता है और ब्लड को सक करता है, तो सक करने के बाद ये गैमेटोसाइट्स इस मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच जाते हैं। ये गैमेटोसाइट्स जब मॉस्किटो के स्टमक में पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट फर्दर डेवलप करता है oocyst में, और oocyst में फर्दर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बाद स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये स्पोरोजॉइट्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में जब ये कलेक्ट हो जाते हैं, जब यही मॉस्किटो दूसरे पेशेंट को जाके बाइट करता है, तो उसके ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए, उस ह्यूमन के ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए अपने सलाइवा को ह्यूमन के ब्लड में छोड़ता है। तो सलाइवा के थ्रू कई सारे स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो फर्दर दूसरी सेकेंड लाइफ साइकिल मलेरिया की स्टार्ट हो जाती है इन सेकेंड पेशेंट। तो इस तरीके से जो मलेरिया का होल प्रोसेस है, ये एक प्रोटोजोवन जो कि एक स्पोरोजॉइट है, जो कि एक स्पोरोजोवन है, उसके थ्रू मलेरिया कॉज होता है। इस लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है। From the release of the sporozoite in human blood to the before entry of sporozoite in liver cell, इस पीरियड को कहते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक फेज।
क्योंकि अभी तक स्पोरोजॉइट ब्लड में एंट्री नहीं किया है, आरबीसी में एंट्री नहीं किया है। जब ये लीवर सेल से रिलीज़ होके आरबीसी में जाता है और आरबीसी में अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद आरबीसी से रिलीज़ होता है, तो यहाँ तक की स्टेज को इस एथ्रोसिटिक साइकिल कहते हैं, जिसमें 2 फेज दिखाई देते हैं, एक सिग्नेट रिंग फॉर्म, दूसरा स्टेज सुफने डॉट दिखाई देता है। और ब्लड में जो रिलीज होते हैं ये गैमेटोसाइट्स रिलीज होते हैं, गैमेटोसाइट रिलीज होते हैं। ये गैमेटोसाइट जब एज सच पड़े रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई दूसरा मॉस्किटो आके सक न कर ले ब्लड के थ्रू। जब दूसरा मॉस्किटो ब्लड को सक करता है तो ये दूसरे मॉस्किटो में के स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, उस साइट का फॉर्मेशन होता है, उस साइट में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के थ्रू स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोजॉइट्स सलाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर सलाइवरी ग्लैंड में एज सच रहते हैं जब तक ये मॉस्किटो किसी दूसरे ह्यूमन को बाइट नहीं कर लेता है और वहाँ पे अपने सलाइवा को ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए नहीं छोड़ता है। जैसे ही ये ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए अपने सलाइवा को गिराता है ब्लड में, कई सारे स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ये स्पोरोजॉइट्स फर्दर लीवर में जाके मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं, यहाँ तक कि स्टेज को प्रीरिथ्रोसिटिक स्टेज या हिपैटिक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोजॉइट लीवर सेल में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये फर्दर मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ये अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं तो ये फिर आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसी में जाके सिग्नेट रिंग फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। फर्दर ये आरबीसी में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं और अपने नंबर को वापस से इंक्रीज़ करते हैं, जहाँ पर आरबीसी में कई सारे डॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। इसी को सुफने डॉट कहते हैं। ये फर्दर अपने मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आरबीसी जब बर्स्ट कर जाती है और ये ब्लड में रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट्स। तो ऐसे लाइफ साइकिल ये चलती है विद इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब हम रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज की क्लास स्टार्ट हुई किंगडम प्रोटिस्टा से, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स हमने पढ़ा। प्रोटोजोअन्स 4 टाइप के होते हैं। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स और प्रोटिस्टा आते हैं। क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स आते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये पैसिवली वाटर करंट के साथ माइग्रेट करते हैं और एल्गल ब्लूम का भी ये फॉर्मेशन करते हैं, जिससे पॉन्ड की बीओडी कम हो जाती है, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। नाउ डायटम्स ऑल्सो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ये बिलियन ईयर्स के बाद जब कई सारे डायटम्स डाई करने के बाद जब ये अर्थ पर
कलेक्ट होते रहते हैं तो डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि पॉलिश ऑयल और सिरप का फॉर्मेशन होता है। नाउ डायनोफ्लैजलेट ये ब्राउन, ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं। जब सी में डायनोफ्लैजलेट के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो सी का कलर ग्रीन हो जाता है। यूग्लिनॉइड्स ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये जनरली डिकेड मटेरियल पे ग्रो करते हैं। स्पोरोजोअन्स ये 4 टाइप के होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजलेटेड, सीलिएटेड, प्रोटोजोअन, स्पोरोजोअन। अमीबॉइडल में सूडोपोडिया होता है। फ्लैजलेट में जनरली फ्लैजलेट होता है, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा और यूग्लिना। सीलिएटेड में एग्जाम्पल पैरामीशियम, ये इनमें लोकोमोशन सीलिया के थ्रू होता है। और सीलिया माइग्रेट करके वाटर करंट को जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू ये फीडिंग भी करते हैं। स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जिससे इनका स्ट्रक्चर स्पोर्स की तरह हो जाता है। नाउ जो स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, इट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग, जिसमें कि 2 होस्ट होते हैं। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती हैं। 2 फेज में लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम की कंप्लीट होती है। नाउ क्लासेस एंड आवर टुमारो टॉपिक इज किंगडम फंजाई।